Begin our lecture. Good morning to all of you. Good morning. Let Good me go morning, ahead sir. in the Good subject morning, of sir. organizational behavior. We start up with the first. What is why we need to study the OB? In that we already discussed what is behavior and why we need to study organizational behavior. In that we just see for the purpose of enhancing the productivity, we need to have the knowledge of behavior of the people. In order to understand and satisfy the employees, we need to have the knowledge of OB. For the purpose of reducing the turnover, absenteeism at the workplace, we require the knowledge of OB. And for the purpose of creating the organizational citizenship among the employees, we need to have the knowledge of OB. So OB will help us in all of this. Then we also discuss that organizational behavior will provide the tool for the purpose of understanding the people at the workplace, and even managers can improve, enhance the work behavior so that at the end of the day, organizational goal is attained. Then we discuss with the who is manager. Manager is the person who get the things done with the help of others for the purpose of attaining the organizational goal. Where he is working at the organization. So organizations is a group of people where two or more persons are there. They are working on a continuous basis and relatively continuous basis, and they must have a common goal. The organization's objective may be profit maximizations, maybe not profit maximizations. Then we also see the various managerial functions which is played by the managers, like planning, organizing, leading, directing, and controlling. Then we also see the various roles which is played by the managers at the workplace, like interpersonal role, where he's supposed to interact with the other persons. Informational roles, कि जहाँ पे वो बंदा various informations collect करेगा और लोगों को देगा. And decisional roles, कि जहाँ पे उसको as a manager he need to take a various decisions. Then we also see about the various skills which a managers need to possess, like technical skills, technical know-how, human skills for the purpose of taking the work from them, and conceptual skills so that he or she can easily take the decision, understand the situations, problems, and based on that he can quickly take the decision. Then we also see where the managers are spending their activities, and based on that research we found that the persons who are speedy successful are spending high time in networking, and people who are more effective, they are spending time in communications and HR activities. चलो तो अभी आगे जाते हैं. So we already study what is organizations. So organizations is a group of people where two or more persons are there who are coming together, working together on a continuous basis for the purpose of attaining the common goal. We also see what is behavior. So behavior means how the one individual is act or react in a given situation. So that refers the behavior of an individual. So now let me go ahead and first of all understand what is organizational behavior, and then we go ahead. So this is the basic definitions of organizational behavior. In your exam, a question may be like this: define the term organizational behavior in a 2.5 marks questions. Question number 1. So here you supposed to explain the definitions कि भाई वो भी क्या है, और next paragraph के अंदर 2 या 3 sentence में आपको ये definitions को explain करना है. So even in exam this can be asked. और कोई long question है, 15 marks का questions है, so at the beginning of the questions you need to define first of all what is behavior. Then after आप जो भी next पूछा हुआ है importance या nature, field, जो भी questions है उसके regarding आप in detail explain करोगे, but initial stage पे ये करोगे then it will be more better. तो चलो आज समझ लेते हैं सबसे पहले organizational behavior क्या है. चलो तो first of all this is the definitions which is given by Stephen Robbins. Organizational behavior, it is the field of study that investigates the impact that individuals, group, and structure have on the behavior within the organizations for the purpose of applying such knowledge towards improving an organization's effectiveness. चलो ये definitions को हम समझते हैं, but for that we need to divide it in a 3 part. चलो first of all,
ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ फील्ड ऑफ स्टडी। ओबी जो है वो क्या है, तो ओबी एक फील्ड ऑफ स्टडी है, एरिया ऑफ स्टडी है, कि जहां पे इन डिटेल स्टडी हो रही है, नॉलेज गेन हो रहा है, रिसर्चर्स जो है वो पर्टिकुलर एरिया को समझ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट दे आर प्रिपेयरिंग द वेरियस थियरीज, वेरियस टर्मिनोलॉजी, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द टर्म बिहेवियर। चलो इसको हम समझते हैं ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल, for the purpose of understanding the organizational behavior, you must go through your systematic study rather than intuition. कि भाई हमें इंट्यूशन के बेसिस पे काम नहीं करना है, बट सिस्टमेटिक स्टडी के बेसिस पे काम करना है। तो इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशन इज अ फीलिंग नॉट नेसेसरीली सपोर्टेड बाय रिसर्च। चलो एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, इंट्यूशन का मतलब क्या? आप रास्ते पर एक्टिवा लेके जा रहे हो और सामने से कोई बंदा बाइक लेके आ रहा है, तो नाउ वो बंदा सामने से लेफ्ट साइड जाएगा अभी या राइट साइड में जाएगा, वो आप कैसे डिसाइड करते हो? दैट यू आर गोइंग टू डिसाइड बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन। वो बंदा रॉन्ग साइड में आ रहा है, आपके सामने आ रहा है, बट अभी आप इंट्यूशन के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो कि यस वो बंदा अभी लेफ्ट में जा रहा है, मुझे थोड़ा सा राइट में जाना चाहिए, सो दैट कि वहां पे कोई एक्सीडेंट ना हो। तो आपने अपने डिसीजन लिया, आपने अपने बिहेवियर डिटरमाइन किया, बट दैट इज बेस्ड ऑन द इंट्यूशन। बट हॉबी में हमें इंट्यूशन के बेसिस पे नहीं चलना है। हॉबी इन दैट वी नीड टू गो फॉर सिस्टमैटिक स्टडी। सो हियर we are looking at the relationship, attempting to attribute the cause and effect, and that draws the conclusions based on the scientific evidence। कि भाई ओबी के अंदर हमें सिस्टमेटिक स्टडी करनी है, हमें समझना है कि भाई कॉज एंड इफेक्ट, कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई इफेक्ट है कि नहीं है। कि फॉर एग्जांपल, कि मैंने अगर कोई बंदे को प्रमोशन दिया, इंक्रीमेंट दिया, तो उसकी इफेक्ट उसके बिहेवियर के ऊपर, उसके परफॉर्मेंस के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर आ रही है या नहीं आ रही है, वो मुझे समझना है। तो फॉर दैट आई डू अ सिस्टमेटिक स्टडी। मैंने 100 या 200 लोगों को ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने ऑब्जर्व किया, आइडेंटिफाई किया, एज द रिजल्ट आई से कि यस देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। कि अगर बंदे को प्रमोशन मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है, तो डेफिनेटली उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, वो नए पोजीशंस पे, नए डेजिग्नेशंस के पे ऊपर और अच्छी तरह से ज्यादा एफर्ट्स लगा के वो बंदा काम कर रहा है। सो इन दिस सिस्टमेटिक स्टडी यू ड्रॉ द कंक्लूजन कि भाई दो एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशनशिप है कि नहीं है। तो हमें ओबी के अंदर, फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर सिस्टमेटिक स्टडी करनी है। हमें समझना है कि भाई वेरियस वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप है कि नहीं है, दैट यस दैट वी वांट टू स्टडी। मेरा मेरा आवाज मेरे को ही वापस आ रहा है, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स। सो फर्स्ट, द ओबी इज अ फील्ड ऑफ स्टडी। ओबी क्या है? तो कि भाई एक स्टडी का एरिया है, नॉलेज का एरिया है, जहां पे हमें सिस्टमेटिकली स्टडी करनी है। चलो आगे जाते हैं। दैट investigate the impact that individuals, group and structure have on behavior। मतलब हमें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के अंदर ही, यस प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, at the workplace, within the organizations, we want to understand what are the factors which will influence the behavior। कि भाई कंपनी के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स है कि जो बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, वो हमें स्टडी करना है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से what are the determinants of the behavior of the people within the organizations। So here it is 3: individual, group and structure। So these are the 3 determinants of behavior। कि भाई कंपनी के अंदर कोई भी हमारा एम्प्लॉय है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके बिहेवियर को कौन कौन सी चीज अफेक्ट कर रही है। तो 3 फैक्टर्स है, 3 चीजें हैं, 3 डिटर्मिनेंट्स है जो उसके बिहेवियर के ऊपर अफेक्ट कर रही है। इट मे बी इंडिविजुअल, इट मे बी ग्रुप, or even it may be structure of the organizations। These are the 3 things which is going to influence your behavior at the
वर्क प्लेस। चलो कि फॉर एग्जाम्पल एज अ वन इंडिविजुअल, कि कोई अकेले इंडिविजुअल का बिहेवियर, उसका परफॉर्मेंस, उसकी एक्टिविटीज अदर एम्प्लॉयज के बिहेवियर के ऊपर कैसे इफेक्ट करेंगे। कि फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी के अंदर जो पर्टिकुलर सुपरवाइजर्स था और हम 5 सेल्समैन थे, तो एक का प्रमोशन होने वाला था, एक ही प्रमोशन की जगह एक ही थी, तो 5 में से जो अच्छा प्रमोशन करेगा उसका प्रमोशन, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसका प्रमोशन होना चाहिए। दिस इज द नॉर्मल बिहेवियर विच पीपल आर एक्सपेक्टिंग। बट क्या हुआ, हमारे जो सुपरवाइजर्स था, हमारा जो इंडिविजुअल सुपरवाइजर्स था, उसने क्या किया, अपने कोई रिलेटिव वाला जो बंदा था, बराबर भाई भतीजा आ गया, कि भाई अपना कांटेक्ट वाला बंदा था, अपना जो रिलेटिव था, उसको प्रमोशन दे दिया। बट जिसने अच्छा परफॉर्म किया था उसको प्रमोशन दिया नहीं। तो वो बंदे की इंडिविजुअल डिसीजन जो है उसकी भी इफेक्ट लोगों के बिहेवियर के ऊपर आएगी। तो 5 में से एक का प्रमोशन हो गया, बट किसका हुआ, जिसने अच्छी तरह से बिहेव नहीं किया था, जिसने अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं किया था, बट उसका सुपरवाइजर्स के साथ रिलेशन था, कांटेक्ट था, तो उसका प्रमोशन हो गया। तो उसकी बाकी के 4 लोगों के बिहेवियर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आएगी। दे विल बी डिससेटिस्फाइड कि यस, ये कंपनी के अंदर पावर एंड पॉलिटिक्स चल रहा है, आप कितना भी अच्छा काम करो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो इवन वन इंडिविजुअल कैन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। सेम वे ग्रुप्स, कि भाई वर्क प्लेस पे जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनका बिहेवियर कैसा है, वो चीज भी लोगों के बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट करने वाली है। कि फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट ऑफिस है, कि वहां पे जहां पे आपने ज्वाइन किया, तो वो ऑफिस के अंदर, वो डिपार्टमेंट के अंदर पहले 4 लोग थे और आप में 5 में आए, तो नाउ देयर आर 5 पीपल्स इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ग्रुप। तो वहां पे जो 4 लोग पहले से थे उन्होंने क्या बोला आपको, कि भाई 11 बजे का ऑफिस का टाइम है, बट 11 बजे आने का नहीं, हमें 11:30 बजे आने आए। तो नाउ वो चारों का बिहेवियर आपके बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट करेगा। क्यों, कि आपको तो उनके साथ ही रहना है, उनके साथ ही काम करना है, आपको तो उनसे मिलके काम करना है। सो बिकॉज ऑफ दैट उनका जो बिहेवियर था, ग्रुप बिहेवियर था, उसकी इफेक्ट आपके बिहेवियर के ऊपर आई। सो नाउ वो 4 लोग 11:30 बजे आते हैं, नाउ यू ऑल्सो स्टार्ट कमिंग एट 11:30, बिकॉज आपका बिहेवियर किससे इन्फ्लुएंस हुआ, मेरे ग्रुप मेंबर से, कि जो मेरे डिपार्टमेंटल कलीग्स थे उससे इन्फ्लुएंस हुआ। इवन कंपनी स्ट्रक्चर, कि भाई आपका कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, एचआर पॉलिसीज कैसी है, रूल्स रेगुलेशंस कैसा है, बिलीफ्स कैसी है कंपनी की, वो चीज की भी आपके बिहेवियर के ऊपर अफेक्ट करती है। कि फॉर एग्जांपल हमारे कंपनी का रूल्स है, फॉर एग्जांपल बिलीफ्स है, वैल्यूज है, तो ये वो क्या है, क्या है कल्चर हमारा, कुछ भी करो बट कॉन्ट्रैक्ट लेके आओ, पैसा खिलाओ, कुछ भी करो, बट हमें एट द एंड ऑफ द डे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो हमारा कंपनी का कल्चर ही ऐसा है। तो जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए, नेगोशिएटर के लिए, मैनेजर के रूप में कोई नेगोशिएट करने के लिए जाओगे, तो डेफिनेटली यू विल गिव द ब्राइब, कि भाई आपका कंपनी का कल्चर ही ऐसा है, तो आपका बिहेवियर, आपका कल्चर भी ऐसा हो जाएगा, आप भी वो उस हिसाब से बिहेव करना स्टार्ट कर दोगे। सो दिस आर द 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर। क्लियर, समझ में आया कि क्या है ओबी, क्या है ओबी, इज अ फील्ड ऑफ स्टडी, कि भाई एक स्टडी या नॉलेज का एरिया है जहां पे हम इन डेप्थ सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं, नॉलेज कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, थियरीज बना रहे हैं, that investigate the impact that individuals, groups and structure have on the behavior within the organization। कंपनी के अंदर ही ये सब हो रहा है। तो कंपनी के अंदर हमें समझना है कि भाई लोगों के बिहेवियर को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट कर रही है। तो ओबी का ये पार्ट है, ओबी के अंदर हम ये सब कर रहे हैं, कि भाई ओबी के अंदर हम जानना चाहते हैं कि भाई बंदे का बिहेवियर जो है, लोगों का बिहेवियर जो है, वो किससे अफेक्ट होता है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, देयर आर 3 determinants which will affect the behavior of the people, like individual, group and structure। ये तीनों चीजों की बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट आने वाली है एट द वर्क प्लेस। आगे जाते हैं। For the purpose of applying such knowledge towards the improving an organization's effectiveness, कि अगर हम ओबी के अंदर ये सब हम स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, थियरीज बनाएंगे, समझेंगे,
तो उससे क्या होगा, ये सारा जो नॉलेज आपने गेन किया है उसको आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। आपने लोगों के बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया, समझा, तो उसके अभी क्या करना है, फ्यूचर में इंप्लीमेंट करना है। किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ इंप्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवनेस, कि भाई कंपनी की इफेक्टिवनेस इंक्रीज करनी है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, कंपनी का जो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट का गोल है वो अटेन करना है, तो उसके लिए आपको ओबी का नॉलेज इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, सो दैट हमारी कंपनी सक्सेसफुल हो। So in this way there are the three parts. First part, the field of study that investigates the field of study. Second part, investigate the impact that individuals, group and structure have on the behavior within the organizations. And third part, for the purpose of applying the such knowledge towards improving the organization's effectiveness. Clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. इंट्यूशन जो है कंसेप्ट, हाँ जी, उसे हम अंदाजा भी कह सकते हैं, राइट? एक हाँ जी, अंदाजे के हिसाब से। हाँ, बट यहाँ पे कोई सिस्टमेटिक स्टडी नहीं होगी। बट सिस्टमेटिक स्टडी का मतलब क्या, कि भाई आपने रूल्स रेगुलेशंस एस्टेब्लिश कर दिए और उसी हिसाब से लोग बिहेव कर रहे हैं, कि भाई रॉन्ग वे में नहीं आएगा बंदा। सिस्टमेटिक है तो रूल्स रेगुलेशंस डिफाइन होगा, भाई राइट हैंड ड्राइव करना है, आपको जाना है तो राइट हैंड ड्राइव करके ही जाना है, आप गलत दिशा में नहीं जाओगे, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करोगे। तो सेम ओबी के अंदर हम सिस्टमेटिक स्टडी एस्टेब्लिश करेंगे, जहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि भाई लोगों को कैसे बिहेव करना है, क्या क्या चीज, कौन कौन सी चीजें उसके बिहेवियर पे अफेक्ट करेगी। तो एग्जाम के अंदर आपको ये पर्टिकुलर डेफिनेशंस को लिखना है। यस प्लीज, नाउ स्विच ऑफ योर माइक। अभी एग्जाम के अंदर आपको ये डेफिनेशंस लिखनी है और उसको 2 या 3 सेंटेंस में एक्सप्लेन करना है। चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशंस व्हिच इज गिवन बाय लुथान्स। Organizational behavior is the study of human behavior in the workplace. Same definitions है but different words में है, simply आपको एक बार समझना है। Organizational behavior is the study of human behavior in the workplace. कि वो भी जो है वो क्या है, तो कि भाई it is the study of human behavior. हमें लोगों के बिहेवियर को समझना है। कहाँ पे, इन द वर्क प्लेस, कि भाई कंपनी के अंदर ही हमें लोगों के बिहेवियर को समझना है, कि भाई कंपनी के अंदर लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब लोगों का बिहेवियर, कंपनी का रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज, तो ये दोनों के बीच में कैसे इंटरेक्ट होता है, मतलब पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस वो कैसे इन्फ्लुएंस होंगे, वो कैसे बिहेव करेंगे, उसकी इफेक्ट कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर क्या आ रही है, कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज है उसकी इफेक्ट लोगों के ऊपर क्या आ रही है, दोनों साइड पे हमें समझना है। विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट द ह्यूमन बिहेवियर, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, कि भाई हमको समझ में आए कि भाई लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, एंड इवन वी कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर्स, जिससे करके हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि यस ये बंदा सही है या गलत है, इसको प्रोडक्टिविटी एनहेंस करेंगे या नहीं करेंगे, ये फ्यूचर में हमारे यहाँ पे रहेगा या सिंपली टर्न ओवर हो जाएगा, इसकी एब्सेंटिज्म होगी या नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आएगी। चलो ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहेवियर कैन बी प्रिडिक्टेड बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द सर्कमस्टेंसेस, मतलब हम बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, बिहेवियर को समझ पाएंगे, बट आपको ध्यान में क्या रखना है, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस। ये हमने एग्जांपल लिया था कि अगर सिचुएशन चेंज होती है, सर्कमस्टेंसेस चेंज होता है, तो आपका बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एट द वर्क प्लेस योर बिहेवियर विल बी क्वाइट डिफरेंट, एट योर house your behavior will be quite different, as a student in classroom your behavior will be quite different, at home in front of your mom your behavior will be different। तो circumstances situation change हो जाएगा, आपका behavior भी change हो जाएगा, तो वो चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। तो this is the definition part of unit number 1. Point number 1, define the term organizational behavior।